Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss about lesson number 7, transport. In this lesson we will study about the transport, the importance of transports and the means of transport. Let's start the reading now. Any means that we use to move from one place to another is called transport. Any means, कोई भी ज़रिए that we use जो हम इस्तेमाल करते हैं to move from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नकल मकानी कहलाते हैं. Machines which take us from one place to another on land are called vehicles. वो मशीनें जो हमें ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं vehicles कहलाती हैं, यानी गाड़ियाँ कहलाती हैं. Some vehicles are driven forward by engines. The engines run on petrol, diesel और CNG. कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो इंजन की मदद से चलाई जाती हैं. इंजन्स रन ऑन पेट्रोल, जो इंजन है वो चलते हैं पेट्रोल से, डीजल और CNG से. सम व्हीकल्स कैन ऑल्सो रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो बिजली की मदद से भी चल सकती हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार्स, बसेस, ट्रक्स, साइकिल्स एंड मोटरसाइकिल्स, anything on wheels including animal drawn carts move people and goods from one place to another. They are therefore important means of transportation, because without all these means we can't travel from one place to another place, so they play a very important role in our life. As we know, vehicles is a machine. Vehicles are machine that move people and things from one place to another. Here I show you some vehicles. There are different types of vehicles you can see here, like bicycle, bus, carriage, crane. These are all the different types of vehicles. The car is a vehicle. कार एक vehicle, एक गाड़ी है. You see cars on the roads every day. आप रोज़ाना सड़क पर गाड़ियाँ देखते हैं. Do you know, क्या आप जानते हैं what the parts of a car are called? कि कार के जो parts हैं वो क्या कहलाते हैं. Here you can see the picture of a car and you can see the name of different parts of the car, like boot, roof, rear view mirror, windscreen, steering wheel, bonnet, engine, radiator, headlight, bumper, side view mirror, tire, wheel, exhaust pipe. These are all the parts of the car and they are performing different functions. Now we'll talk about the different vehicles. First of all, we'll talk about land vehicle. Some vehicles move on land. कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो ज़मीन पर हरकत करती हैं. Most land vehicles have wheels. ज़्यादातर जो land vehicles होती हैं इनके पहिए होते हैं. Examples of land vehicles are bicycles, cars, motorcycles and trains. अगर बात की जाए land vehicles की तो इसमें हमारे पास bicycle, cars, motorcycles और trains आ जाती हैं. Land vehicles that are powered by an engine or motor are called motor vehicles. लैंड व्हीकल्स जो कि इंजन की मदद से या किसी मोटर की मदद से चलती हैं वो मोटर व्हीकल्स भी कहलाती हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सम लैंड व्हीकल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वाटर व्हीकल्स. सम व्हीकल्स मूव ऑन और इन द वाटर. एग्जाम्पल्स आर बोट्स, शिप्स एंड सबमरीन्स. कुछ व्हीकल्स ऐसी भी होती हैं जो कि पानी पर या पानी में चलती हैं, जिसमें हमारे पास बोट्स, शिप्स और सबमरीन्स आ जाती हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सम वाटर व्हीकल्स. Now we'll talk about air vehicles. Vehicles that move in the sky are aeroplanes and balloons. Here you can see the picture of air vehicles. These are some air vehicles which move in the sky. Here are some other vehicles which have engines. They all need petrol, diesel or CNG and oil and water to run. The tires need air. Can you think why water is needed and where it is used in a vehicle? यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी गाड़ियाँ हैं जिनके इंजन होते हैं. इनको भी चलने के लिए पेट्रोल, डीजल, CNG, ऑयल या पानी की ज़रूरत होती है. द टायर नीड्स एयर. और जो टायर होती हैं गाड़ी को, उनको हवा की ज़रूरत होती है. अगर उसमें हवा भर दी जाए तो वो बहुत स्मूथली जो है वो सड़क के ऊपर चल सकते हैं. कैन यू थिंक वाई वाटर इज़ नीडेड. कि आप सोचते हैं कि पानी की ज़रूरत क्यों होती है एंड वेयर इट इज़ यूज इन अ व्हीकल, और ये किसी भी व्हीकल में कहाँ पे इस्तेमाल होता है. Most vehicles use water, but that is only to cool their engines. Just to cool down the engines, we use water, and it is mostly used in radiator to cool down the engine. अब जाहिर सी बात है, एक गाड़ी चल चल के जब वो गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसका इंजन गर्म हो जाता है, तो गाड़ी के इंजन को कूल डाउन करने के लिए जो है पानी का इस्तेमाल किया जाता है. कैन यू नेम द व्हीकल्स इन दिस पिक्चर. क्या इस तस्वीर में मौजूद गाड़ियों के आप नाम बता सकते हैं. येस, वी कैन ईजीली टेल द नेम ऑफ ऑल दीज व्हीकल्स बिकॉज वी
have seen all these vehicles on road. The first one is auto rickshaw, scooty, motorbike, jeep, oil tanker, bus and truck. Some vehicles do not have an engine. कुछ गाड़ियाँ जिनके इंजन नहीं होते हैं. अगर हम बात करें उन गाड़ियों की जिनके इंजन नहीं होते हैं, दे आर पुल्ड बाय एनिमल्स. जिनको कौन खींचते हैं? जानवर खींचते हैं. हैव यू सीन एनी ऑफ दीज ऑन द रोड्स? क्या आपने इनमें से कोई भी सड़क पर देखे हैं? कैन यू नेम सम मोर? क्या आप कुछ जो है ऐसे व्हीकल्स का नाम बता सकते हैं जिनके व्हील्स नहीं हो, जिनके इंजन नहीं होते और इनको एनिमल्स जो है वो पुल करता है? अगर हम बात करें तो टोंगा, डंकी कार्ट, हॉर्स कैरेज, कैमल कार्ट एक्सेट्रा, दे आर ड्रॉन बाय एनिमल्स. They are generally used to move goods and sometimes people in those areas where there is no facility for motorized transport. Some vehicles neither have engines nor are they pulled by animals. How do you think they move? कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके इंजन नहीं होते और ना ही उनको एनिमल्स पुल करते हैं. तो आप क्या सोचते हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं ये कैसे मूव करती हैं? These are those vehicles like if we talk about carts, we see hawkers selling various things from fruits and vegetables to burgers and biryani on thellas. These vehicles help them earn money for meeting their everyday expenses. Basically जो कार्ट्स को लेकर जाते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें हॉकर्स की, जो हॉकर्स हैं वो डेली बेसिस पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीट्स में, रोड साइड पे जो है वो बेचते हैं और ये उन कार्ट्स को खुद कैरी करते हैं, खुद पुल करते हैं. इन कार्ट्स को जो है ना तो किसी इंजन के थ्रू जो है रन किया जाता है और ना ही कोई एनिमल्स इनको पुल करते हैं. These are the vehicles with no engine like a horse carriage and a bullock cart. Did you know the largest aeroplane today is the Airbus A380? It can carry a full load of 655 passengers. Here you can see the picture of Pakistan International Airlines. This is the Airbus A380. This is the largest aeroplane today. ये दुनिया का जो है आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जहाज़ होता है जो कि एक वक्त में तकरीबन 655 पैसेंजर्स जो है उसको कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है. ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट वे टू गो एनीवेयर. हवा के ज़रिए सफ़र करना जो है वो ट्रैवलिंग का एक फास्टेस्ट वे है, एक बहुत ही तेज़ तरीन ज़रिया है. एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द सी एंड हाई माउंटेन्स. एरोप्लेन जो हैं वो समंदर और बुलंद पहाड़ों के ऊपर से उड़ सकते हैं. दे कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द शॉर्टेस्ट टाइम. ये मुनक़ल मकानी कर सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोगों की ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, लंबे फासलों में, इन द शॉर्टेस्ट टाइम, बहुत कम अरसे में. एरोप्लेन्स के ज़रिए हम बहुत ही कम वक्त में लॉन्ग डिस्टेंसेस जो हैं कवर कर सकते हैं. एरोप्लेन्स के थ्रू जो है हम अपने दिनों का सफ़र घंटों में तय कर सकते हैं और घंटों का सफ़र जो है हम लोग मिनटों में तय कर सकते हैं. एंड एरोप्लेन्स नॉट ओनली डू पीपल मूव क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट गुड्स स्पेशली दोज दैट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन द शॉर्टेस्ट टाइम लाइक मेडिसिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर टेकन बाय एयर. एरोप्लेन्स कैरी लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड ऑल्सो कार्गो. For travelling short distances by air, the helicopters is most useful. कम फासले, छोटे फासले जो हैं इनको तय करने के लिए जो हेलीकॉप्टर्स जो है बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं. हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड ऑलमोस्ट एनीवेयर. हेलीकॉप्टर कहीं पे भी लैंड कर सकते हैं, इवन ऑन योर स्कूल प्लेइंग फील्ड. यहाँ तक कि आपके स्कूल का जो प्लेइंग एरिया है, प्लेइंग फील्ड है, वहाँ पे भी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ईजीली लैंड कर सकते हैं. अ हेलीकॉप्टर कैन राइज स्ट्रेट अप. हेलीकॉप्टर जो है ना वो ईजी एक स्ट्रेट अप जो है बिल्कुल सीधा जो है ऊपर उड़ सकता है इनटू द एयर, हवा में, एंड लैंड स्ट्रेट डाउन ऑन द ग्राउंड अनलाइक एन एरोप्लेन व्हिच टैक्सीज अक्रॉस अ लॉन्ग रनवे टू टेक ऑफ एंड लैंड. Helicopters are used for rescue missions as well as in war zones. Because a helicopter can easily rise straight up and can easily land straight down on the ground, and anywhere it can land. So it is mostly used for the rescue missions and in case of any war zones. So it is very helpful in that situations. Vehicles that travel along the ground have wheels. वो गाड़ियाँ जो कि ज़मीन पर चलती हैं उनके व्हील्स होते हैं, उनके पहिए होते हैं.
ट्रेन्स हैव व्हील्स टू, गाड़ी के भी पहिए होते हैं, बट दे मूव अलोंग अ ट्रैक, ऑन ट्रैक और रेल्स, लेकिन ये पटरी पर जो है वो चलती हैं। रेलवे कैरेजेस आर पुल्ड बाय पावरफुल इंजन। अगर रेलगाड़ियों की बात की जाए तो इसको भी एक बहुत पावरफुल ताकतवर इंजन जो है वो इसको खींचता है। द पावर फॉर दीज इंजन्स कम्स फ्रॉम डीजल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी। इंजन को जो पावर प्रोवाइड की जाती है ये डीजल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी से जो है हासिल की जाती है। Here you can see the picture of helicopter. As I told you, helicopters are used for rescue missions as well as in war zones because it can rise straight up into the air and land straight down on the ground, unlike an aeroplane which taxis across a long runway to take off and land. जैसे कि एक एरोप्लेन को जो है टेक ऑफ करने के लिए, उसको लैंड करने के लिए एक प्रॉपर रनवे की ज़रूरत होती है। हेलीकॉप्टर जो है वो कहीं पे भी लैंड कर सकता है। इसको स्पेशली रेस्क्यू मिशन के लिए यूज़ किया जाता है और वॉर जोन्स में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ हियर यू कैन सी द रेलवे कैरेज। बुलेट ट्रेन। स्टूडेंट्स, डू यू नो about the bullet train? This is a bullet train. It runs very fast at an average speed of 260 km per hour. The bullet train was first developed by Japan in 1964. It is powered by electricity. अगर बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन जो है वो कह सकते हैं कि बहुत तेज़ रफ्तारी से चलती है और इसकी जो स्पीड है वो 260 km per hour है। बुलेट ट्रेन जो है सबसे पहले जापान ने बनाई थी 1964 में। इट इज़ पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और ये किससे चलती है? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। दीज आर द रेलवे ट्रैक्स। ये रेल की पटरी है। Have you ever traveled by train in Pakistan? We have a railway network that links all major towns and cities. क्या आपने कभी ट्रेन से सफ़र किया है? पाकिस्तान में हमारे बहुत से जो इम्पॉर्टेंट मेजर टाउन्स और सिटीज़ हैं वो रेलवे नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड हाईवेज़। यहाँ पर जो है पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो रोड्स और हाईवेज़ का भी एक बहुत अच्छा नेटवर्क है। मैनी पीपल ट्रैवल बाई कार एंड मैनी मोर यूज़ द बस सर्विस। बहुत से लोग जो हैं वो कार के ज़रिए सफ़र करते हैं और बहुत से जो हैं वो बस सर्विसेज का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेन टाउन्स एंड सिटीज़ एक्सेप्ट इस्लामाबाद एंड सम प्लेसेस इन द माउंटेन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान आर कनेक्टेड बाई रेलवेज एंड ऑल द मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स अक्रॉस द कंट्री आर लिंक्ड बाई अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स। मैनी पीपल, स्पेशली दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द air fare or train fare, uses buses and coaches to travel from one city or town to another. We also see trucks, trailers that transport goods and tankers that carry oil over the highways from one place to another across the country. People who travel a long way, वो लोग जो लंबा सफ़र करते हैं, समटाइम्स बाज़ हैव टू क्रॉस द सी, उन्हें समुद्र भी पार करना पड़ता है, अ रिवर और अ लेक, दरिया या झील भी पार करना पड़ती है। दे कैन ट्रैवल बाय बोट और एरोप्लेन। तो वो कैसे सफ़र करते हैं? वो बोट के ज़रिए या एरोप्लेन के ज़रिए ट्रैवल करते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बोट। बहुत ज़्यादा किस्म की कश्तियाँ होती हैं। अ फेरी फॉर एग्जाम्पल कैरीज पीपल एंड गुड्स प्रोडक्ट्स फ्राम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अपोजिट बैंक। फेरी की बात की जाए तो फेरी जो है मिसाल के तौर पर ये कैरी करती है लोगों को और चीज़ों को दरिया के एक किनारे से उसके दूसरे किनारे पे। शिप्स आर यूज्ड टू कैरी लार्ज लोड्स ऑफ गुड्स लाइक ग्रेन, वुड, मशीनरी एक्सेट्रा। शिप्स जैसे कि बहरी जहाज़, शिप्स जो होते हैं ये ज़्यादातर समुद्रों में चलते हैं। ये इस्तेमाल किए जाते हैं भारी वज़न वाली चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जिसमें हमारे पास अनाज, लकड़ी, मशीनें वगैरह शामिल हैं। शिप्स दैट कैरी ऑयल आर कॉल्ड टैंकर्स। वो बहरी जहाज़ जो कि ऑयल को कैरी करते हैं, ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, वो ऑयल टैंकर्स कहलाते हैं। दे आर ह्यूज शिप्स विच कैरी थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल। ये बहुत बड़े बड़े बहरी जहाज़ होते हैं जो कि एक टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। गुड्स दैट आर पैक्ड इन कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर शिप्स। वो चीज़ें जो कि कंटेनर्स में पैक की जाती हैं उनकी नकल मकानी करवाई जाती है कंटेनर शिप्स के थ्रू। कंटेनर शिप्स जो हैं ये भी हेल्प आउट करती हैं हमारी चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने में थ्रू वाटर। बोट्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। बोट्स जो हैं वो ना सिर्फ लोगों को और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम आती है, बल्कि ये स्पोर्ट्स और एडवेंचर के लिए भी, मतलब खेलों के लिए और मुहिम के लिए भी
इस्तेमाल की जाती हैं। अ स्पीड बोट मूव्स वेरी फास्ट ओवर द वाटर। अगर स्पीड बोट की बात की जाए तो स्पीड बोट जो है, इसका नाम ही बता रहा है कि ये जो इसकी काफ़ी स्पीड होती है और ये पानी के ऊपर बहुत तेज़ रफ्तारी से चलती है। फिशरमैन ऑल्सो यूज़ बोट्स टू गो फिशिंग इन द लेक्स, रिवर्स और द सी। अगर हम लोग माहीगीरों की बात करें तो माहीगीर जो होते हैं ये भी कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, झीलों से, दरियाओं और समंदर से। शिप्स हैव ह्यूज इंजन्स। बहरी जहाज़ों के बहुत बड़े बड़े इंजन होते हैं। कैन यू सी इन द पिक्चर सम बोट्स दैट हैव नो इंजन्स, हाउ डू दे मूव। कुछ कश्तियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके इंजन नहीं होते हैं, तो आपको पता है कि वो कैसे चलती हैं। Let's talk about the ships one by one. A ferry, a boat or ship for conveying passengers and goods, especially over a relatively short distance and as regular service. It is sometimes called a water bus or water taxi. अगर हम फेरी की बात करें तो फेरी जो है ये एक रेगुलर सर्विस प्रोवाइड करती है पैसेंजर्स को और शॉर्ट डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसको वाटर बस और वाटर टैक्सी भी कहा जाता है। Here you can see the picture of a ferry. A raft. A raft is mostly used for rafting in lakes. Canoe is a simple boat which carry a few people. Here's a picture of oil tanker. It carries barrels of oil at a time and transfer it from one place to another. This is a picture of a luxury liner. A luxury liner is like a holiday resort with all sorts of facilities on board, like theaters, swimming pools, game rooms, shopping centers, tennis courts, etc. Luxury liner जो है ये एक मतलब कह लें कि फैसिलिटेटेड हमारे पास जो है शिप होती है, जिसपे हमारे पास बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक वहाँ पे सिनेमाज होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, गेम रूम्स होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं बाकायदा। A rowing boat. If we talk about the rowing boat, तो rowing boat जो है ये औरत की मदद से चलाई जाती है। एक सिंपल बोट होती है, इसका कोई इंजन नहीं होता, और यानी चप्पू की मदद से जो है इसको चलाया जाता है। Now we'll talk about the road safety. Thousands of people live in large cities. हज़ारों लोग जो हैं वो बड़े शहरों में रहते हैं। People have to go from place to place. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। Adults go to work, children go to school. बड़े जो हैं वो काम पर जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं। Traffic is always on the move. गाड़ियाँ जो है वो हर वक्त चलती रहती हैं। Roads are very busy in the morning when people go to work and in the evening when people they go home. रोड्स की बात की जाए तो रोड्स जो हैं सुबह सवेरे बहुत मसरूफ़ होती हैं जब लोग काम पर जाते हैं, और शाम के वक्त जब लोग वापस घर आते हैं। You can see the picture of traffic. Mostly traffic seems like this in the evening when people are coming back from their work. Everyone on the road, हर कोई सड़क पर, whether they are driving, राइडिंग मोटरसाइकिल्स और बाइसाइकिल्स और वॉकिंग, मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। चाहे वो गाड़ी चला रहा है, चाहे वो सवार है किसी बाइक पर, साइकिल पर या पैदल चल रहा है, सब पर ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक के कवानीन को अमल करना जो है वो लाजिम है। दीज रूल्स आर मेड टू कीप एवरीवन सेफ एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ये असूल बनाए जाती हैं ताकि हर कोई जो है महफूज रह सके और हादसात से बच सके। ट्रैफिक रूल्स आर सेट आउट इन अ बुक कॉल्ड द हाईवे कोड्स। ट्रैफिक रूल्स जो हैं इनको एक बुक में लिखा गया है जिसे हाईवे कोड कहा जाता है। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स इज़ पनिशेबल बाय लॉ। जो भी पर्सन जो है ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करता है, ट्रैफिक के कानून को तोड़ता है, उसको कानून की मदद से जो है वो सज़ा दी जाती है। People who break the traffic laws are caught by the traffic police and usually given a चालान to pay a fine. जो भी कोई पर्सन जो है वो ट्रैफिक रूल को ब्रेक करता है उसका चालान किया जाता है, उसको फ़ाइन पे करना पड़ता है। एंड देयर ड्राइविंग लाइसेंस इज़ कॉन्फिस्केटेड टिल द फाइन इज़ पेड। और उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ले लिया जाता है जब तक वो फ़ाइन को पे नहीं करता। इन केस ऑफ सीरियस इंजरी टू अदर बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ट्रैफिक लॉज, रैश ड्राइविंग एक्सेट्रा, द पर्सन कैन ऑल्सो बी सेंट टू जेल। अगर उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को नुकसान हुआ है तो उसको जो है वो जेल भी भेजा जा सकता है। इन अदर कंट्रीज़ पीपल रिसीव टिकट्स फॉर ब्रेकिंग द लॉ।
कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी है जहाँ पे लॉज ब्रेक करने के जो भी लॉ ब्रेक करता है उसको टिकट्स दी जाती हैं. इफ़ द नंबर ऑफ टिकट्स एक्सीड अ स्पेसिफिक लिमिट दैन ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द पर्सन इज़ कैंसल्ड एंड ही और शी इज़ नो लॉन्गर अलाउड टू ड्राइव ऑन द रोड्स. तो उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाता है और वो जो है वो बाद में जो है वो ड्राइविंग नहीं कर सकता. पीपल हु वॉक अलॉन्ग अ फुटपाथ आर पेडेस्ट्रियंस. वो लोग जो कि फुटपाथ पर चलते हैं वो पेडेस्ट्रियंस कहलाते हैं. पैदल चलने वाले को पेडेस्ट्रियंस कहा जाता है. व्हेन यू वॉक टू स्कूल यू आर अ पेडेस्ट्रियन. अगर आप स्कूल पैदल जाते हैं तो आप एक पेडेस्ट्रियन हैं. पेडेस्ट्रियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल. पेडेस्ट्रियंस को भी बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए. केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ पेडेस्ट्रियंस कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स एज वेल. अगर पेडेस्ट्रियंस जो हैं वो भी लापरवाही का मुजाहरा करेंगे तो उनकी वजह से भी है एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. यू हैव सीन मेनी टाइम्स ऑन रोड पीपल जंप ऑफ बसेज इन द मिडल ऑफ रोड और क्रॉस द रोड फ्रॉम वेयर एवर दे लाइक. This leads to accident as vehicles cannot come to a sudden stop and are likely to hit another vehicle or pedestrians. So it can cause accident. We should be very careful on roadside. Here I show you the highway code. This is the official book of traffic rules. A book called the highway code is kept in the car's glove compartment. This has to be kept in the car by law. It has all the road signs and symbols printed inside. हाईवे कोड जो है ये आपको अपनी गाड़ी में अपनी जो भी आप जो है राइड चला रहे हैं उसमें रखना बहुत ज़रूरी होती है. इसके अंदर तमाम ट्रैफिक रूल्स और साइंस के अकॉर्डिंग जो है गाइडेंस होती है. Here is a picture of a footpath where you can see the children are moving and this is zebra crossing and this is a footpath. Footpath is a path along the road for pedestrians. ये पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है ताकि वो बआसानी जो है वो चल सकें. Zebra crossing an area of road printed with broad white stripes where vehicles must stop if pedestrians wish to cross. Zebra crossing जो है वो सड़क पार करने के लिए बनाई जाती है पैदल चलने वालों के लिए. Here are some rules for all pedestrians. यहाँ पर तमाम pedestrians के लिए कुछ असूल बताए गए हैं. Follow the rules and they will help you to keep safe. इन रूल्स पर अमल पैरा होकर जो है हम महफूज रह सकते हैं. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सेफ प्लेस. हमेशा एक महफूज जगह से सड़क पार करें या ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें. बिफोर क्रॉसिंग अ रोड सड़क पार करने से पहले फर्स्ट लुक राइट, पहले दाएं देखें, देन लुक लेफ्ट, फिर बाएं देखें, लुक राइट अगेन, दोबारा दाएं देखें. लिसन केयरफुली, एहतियात से सुने. इफ देयर इज़ नो ट्रैफिक कमिंग, अगर कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रही, क्रॉस द रोड, सड़क पार करें. व्हेन यू वांट टू क्रॉस द रोड मेक श्योर यू कैन सी बोथ वेज. जब आप सड़क पार करना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ की यकीन दहानी कर लें कि आपने रास्ते के दोनों तरफ में देख लिया है. डू नॉट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड अ पार्क व्हीकल. पार्क व्हीकल्स जो होती हैं, जो खड़ी हुई गाड़ियाँ होती हैं, जो पार्क की हुई होती हैं, उनके पीछे से कभी भी सड़क पार ना करें. नेवर प्ले ऑन और नियर अ रोड. सड़क पर या सड़क के करीब मत खेलें. नेवर ट्राई टू गेट ऑन अ मूविंग व्हीकल, इट्स वेरी डेंजरस. मोस्टली जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बस अगर छूट जाती है तो वो लोग भाग के उस बस को पकड़ने की कोशिश करते हैं. बहुत डेंजरस चीज़ होती है. कभी भी चलती हुई गाड़ी पर चढ़ने की या चलती हुई गाड़ी से उतरने की कोशिश मत करें. ये बहुत डेंजरस चीज़ है. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पर चलें. इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है, वॉक क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड. तो सड़क के जो किनारे हैं आप वहाँ पर चलें. सम ट्रैफिक रूल्स दैट द स्टूडेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ. कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जिनके जो है स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. इफ़ एन एरिया इज़ डिक्लेयर्ड अ साइलेंट जोन बाय द अथॉरिटीज़, ओनली ड्राइवर्स ऑफ फायर इंजन्स, एम्बुलेंसेज एंड पुलिस कार्स आर अलाउड to sound their horns. No one should overtake a car from the left. Overtaking can only be from the right. अगर कोई एरिया साइलेंट जोन डिक्लेयर कर दिया है जहाँ पर आपको जाने से मना किया गया है तो आप वहाँ पर मत जाएं. वहाँ पर जो है अगर कहीं पे कोई हादसा फिर जाता है, कहीं पे कोई फायर लग जाती है या कोई भी इशू हो जाता है तो वहाँ पर जो है फायर इंजन्स को, एम्बुलेंसेस को, पुलिस कार्स को जाने की जो है उनको रास्ता दिया जाए, ना कि खुद वहाँ पे रश लगाया जाए. नो, और किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो गाड़ी को लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करे. ये भी जो है एक्सीडेंट का कॉज बनती है अगर आप ओवरटेकिंग कर सकते हो लेकिन राइट साइड से. ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऑन द स्ट्रीट आर अ पाथवे फॉर पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस to the other side of the road when the traffic stops at a traffic signal. ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो भी बनाई जाती है सड़कों के ऊपर, ये वो रास्ते होते हैं जो कि पैदल चलने वालों के लिए होते हैं ताकि वो सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकें जब ट्रैफिक जो है वो स्टॉप हुई होती है, रुकी हुई होती है सिग्नल्स पे. वाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग हैव दैट नेम. अच्छा, अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नेम जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज इस वजह से होता है, इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स लाइक अ ज़ेब्रा. क्योंकि इसकी ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं जैसे कि ज़ेब्रा की स्किन पे होती हैं. It is compulsory for drivers to stop for pedestrians at a zebra
क्रॉसिंग, ये ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लाजमी होता है कि जो पैदल चलने वाले हैं उनको रास्ता दिए जाए, उनके लिए रुक जाएं सिग्नल्स पे, ताकि वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू जो है सड़क पार कर सकें। If an ambulance, fire engine or police car sounds and sirens, vehicles should move to the left to allow it to pass. अगर किसी एम्बुलेंस का, फायर इंजन का, पुलिस का आप साउंड सुनते हैं तो गाड़ी को हमेशा जो है लेफ्ट साइड पर मूव करा लें और उनको गुजरने का रास्ता दें। दिस इज़ बिकॉज ऑल 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर यूजुअली स्पीडिंग ड्यू टू एन इमरजेंसी सिचुएशन। इस वजह से क्योंकि ये जो 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं ये हमेशा जो है एमरजेंसी सिचुएशन में होती हैं, तो इस वजह से इनको गुजरने का रास्ता देना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी, ये लाजमी है फॉर ट्रांसपोर्ट, नकल मकानी के लिए, व्हीकल्स टू बी रोड वर्दी, i.e. their brakes, engines, tires and the body are required to be in good enough condition so that they do not break down on the roads or cause accident। जो भी गाड़ियाँ हम सड़क पे यूज़ करें नकल मकानी करने के लिए, उसका रोड वर्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसके ब्रेक, इंजन, टायर्स, उसकी बॉडी, सब कुछ जो है वो अच्छी हालत में होनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ड्यूरिंग ट्रैवल जो है वो टूट फूट का शिकार ना हो जाए और हादसे का शिकार ना हो। अबव ऑल no account should vehicle be driven by underage drivers or people। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कभी भी अंडर एज लोगों को जो है वो ड्राइवर जो है नहीं ड्राइविंग करनी चाहिए, वो उनको कोई भी व्हीकल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। What does a tanker carry? What is a ferry used for? Which is the fastest way of traveling? Have you ever traveled by aeroplane or by boat? Describe your journey. What are the rules for crossing a busy road? Why do you think it is not a good idea to be noisy or to talk to the driver when you are traveling in a car or a bus? Why are traffic rules important? Where will you find the traffic rules? Here are the answers. The answer number 1 is a tanker carries oil and fuel such as petrol and diesel. Answer number 2, a ferry carries people and cargo across a river or a water channel. Answer number 3, traveling by air is the fastest way to travel. Answer number 4, students to write their own answers to this question. Answer number 5, A part, always cross at a zebra crossing. B, before crossing a road, make sure you look both ways. Look first to your right, then to the left, and once again to the right. If there is no traffic coming from either side, you may cross the road. And C part, do not cross from behind a parked vehicle. Answer number 6, the driver may become distracted by the noise or talk and cause an accident. And answer number 7 is traffic rules are important for our safety and for preventing accidents. They are given in the highway code. Allah Hafiz.